تلنگانہ کی لیڈی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندراراجن نے آج جینیوم ویلی میں واقع بھارت بایوٹیک کیمپس کی ایک تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئی اور کووڈ-19 اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن اور اربن ڈیولپمنٹ کے ٹی راما راؤ نے آج اپنی ایک اجلاس کے بعد پریس ریلیز کے ذریعے عوام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پچھلے 5 سالوں میں کارپوریٹرز، ریاستی وزراء، ایم ایل ایز وغیرہ کی ایما پر حکومت نے شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے ایک کثیر بجٹ یعنی 67,000 کروڑ کو بروئے کار لا کر پینے کے پانی، سڑکوں کی تزئین نو، انفراسٹرکچر اور دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے کروڑوں روپے پینے کے پانی کی طرح بہا دیے اور اس سلسلے میں عنقریب ایک پروگریس رپورٹ کی اجرائی عمل میں لا دی جائے گی۔ تلنگانہ کی لیڈی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندراراجن نے آج جینیوم ویلی میں واقع بھارت بایوٹیک کیمپس کی ایک تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئی اور کووڈ-19 ویکسینز کی تیاری سے جڑے بہت سارے محققین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ اس سال کے اواخر تک انہیں کامیابی ضرور مل جائے گی کیونکہ ابھی سارے ملک کی نظریں ان کی جانب بے چینی سے لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آخر میں ان سارے سائنٹسٹ و ریسرچرز کو سیلیوٹ کیا جو کووڈ-19 ویکسین کی تحقیق میں رات دن جڑے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ میں نئے الیکشن کمشنر بنائے جانے والے سی ایس پارتھا سارتھی نے آج اپنے ایک اجلاس میں بتلایا کہ آنے والے جی ایچ ایم سی انتخابات کے لیے حکومت ٹی پول سافٹ ویئر استعمال میں لائے گی جس کے ذریعے سے سارے ہی معاملات پرسکون طریقے سے انجام دیے جائیں گے۔ پارٹی کینڈیڈیٹس اس سافٹ ویئر کے ذریعے آسانی سے ساری جانکاری حاصل کر سکیں گے اور اس پروسیس میں مہارت لانے کے لیے سارے ہی متعلقہ افراد کو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ انتخابات اور امیدوار کی ساری جانکاریاں بھی اس سافٹ ویئر میں شامل کی جانے والی ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ٹی پدما راؤ نے آج ٹی آر ایس کے بہت سارے لیڈرز و ورکرز کے ہمراہ شاد نگر کا دورہ کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے مشہور بزرگ حضرات حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دی اور عقیدت کی چادر و گل پیش کرتے ہوئے فاتحہ خوانی میں شریک ہوئے۔ 2 سال پہلے الیکشن کے پہلے جو ہے ہمارے حلقے کے لوگ ہمارے ساتھی ہم پورے جو نیاز بنائے نیاز کرے تھے، وہ نیاز میں جو ہے مجھے بھی انوائٹ کیے تھے۔ 2 سال پہلے جو ہے بابا کے درگاہ کو میں بھی آ چکا تھا، اب ایک منت لے کے گیا تھا یہاں سے۔ آنے والے 2 سال کے بعد کے الیکشن میں تلنگانہ راشٹر سمیتی پارٹی جو ہے پھر حکومت آ کے ساتھ ہی ساتھ ہم بھی جو ہے ایم ایل اے پھر جیتے جو یہاں پر آ کے جو ہے نیاز کریں گے، ان کے بابا سے منت لے کے گیا تھا۔ وہ منت جو ہے پورا کرنے کے لیے جو ہے ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ آ جا کے جہانگیر بابا کا منت پورا کرنے کے جا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے مضافاتی علاقے معین آباد میں حالیہ دنوں میں اپنے ہی گھر میں کام کرنے والی اپنی بیٹی جیسی ایک غریب مسلم لڑکی کو بے آبرو کرتے ہوئے اسے پھانسی پر لٹکا کر خودکشی ثابت کرنے والے انسان نما حیوان ٹی آر ایس کے لیڈر مدھو یادو کے خلاف میں آج ضلع وقار آباد کے کوڑنگل منڈل میں بہت سارے سماجی جہدکار اور کئی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران نے بلا لحاظ مذہب و ملت وہاں کے شاہ بازار سے ایک زبردست ریلی نکالی اور تحصیلدار کے آفس پہنچ کر ٹی آر ایس کے حیوان نما لیڈر کو پھانسی دینے کے لیے ایک یادداشت پیش کی۔ اس کے بعد وقار آباد ڈسٹرکٹ پولیس آفس جا کر انہیں بھی اپنا فرض یاد دلایا۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں تلنگانہ کے شاد نگر علاقے میں ایک ہندو لڑکی کے ریپ کیس میں پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار وی سی سجنار نے 4 نوجوانوں کا انکاؤنٹر کر دیا تھا جو کہ بہت غریب واقع ہوئے تھے۔ اب دیکھنا ہے کہ ریاست کا محکمہ پولیس ٹی آر ایس کے لیڈر کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی پارٹی کی جانب سے گورنمنٹ کے ایک جیو کو رد کرنے کے مطالبے کے تحت ساری ریاست کے تحصیلدار آفیسرز کے روبرو دھرنا دینے کی بات پر آج حلقہ ملکاج گری کے بی جے پی ورکرز نے بی جے وائی ایم کے کارکنوں کے ساتھ مقامی تحصیلدار آفس کے روبرو دھرنا دیا اور اپنی غلط طریقوں سے بات منوانے کے لیے پولیس کو متوجہ کر لیا۔ حالانکہ حالیہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بی جے پی حکومت کی جانب سے کسان دشمن ثابت ہو جانے والے ایک بل کے خلاف میں ہریانہ کے کسانوں کی جانب سے جب احتجاج کیا گیا تو بڑے ہی انسانیت سوز طریقوں سے انہیں دبانے کے لیے غلط طریقے استعمال کرنے کے وائرل ویڈیوز
सोशल मीडिया में आ गए थे। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस हदूद में आज एक खुदकुशी का हादसा रोनुमा हुआ। बतलाया गया है कि मोहम्मद यूसुफ नामी एक शख्स फांसी लेकर अपने आप को ख़त्म करने में कामयाब हो गया। इतला मिलने पर फलकनुमा पुलिस के अहदेदार ने वहां पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने रवाना करते हुए खुदकुशी की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व हल्के चेवड़ला के साबिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विश्वेश्वर रेड्डी ने आज अपने एक सहाफती बयान में हालिया रोनुमा होने वाले मोइनाबाद मुस्लिम गर्ल रेप एंड मर्डर केस की सख्त मजम्मत की। टीआरएस लीडर मधु यादव के खिलाफ में केस बुक करने वाले पुलिस की जानिब से दफा 354 और 306 लगाने का इन्होंने सख्त नोट लेते हुए बतलाया कि पुलिस अवाम की खिदमतगार नहीं बल्कि हुकूमत के गुलामों की तरह काम कर रही है। यानी कि खुल्लम खुल्ला चार्जेस ही इतने कमजोर लगाए गए हैं कि पहले ही से लचकदार कवानीन के तहत कसूरवार आसानी से छूट जा सकता है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पड़ोसी शहर सिकंदराबाद के गोपालापुरम पुलिस हदूद में रियासत में बैन करदा गांजे की एक बड़ी मकदार आवाम को फरोख्त करते हुए करीब 7 लोगों की एक गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 54 किलोग्राम गांजे की बड़ी मकदार के साथ साथ उनके सेल फोन भी जब्त कर लिए। इस केस में डीसीपी टास्क फोर्स पी राधाकिशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू ने अपने स्टाफ के साथ इस धावे को कामयाब बनाया। रियासत तेलंगाना में हालिया दिनों में लॉकडाउन के चलते तकरीबन आवाम की बहुत सारी तफरीही जगहों को बंद जो कर दिया गया था, अभी उन्हें दोबारा खोलने की तारीखें मुतय्यन कर दी गई हैं। हालांकि इस बीमारी के सिलसिले में मुतय्यन करदा फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनखा एक बड़ी वजह बनकर भी सामने आ गया है। इसके बावजूद भी हुकूमत ने अभी ऐलान किया है कि शहर हैदराबाद की मशहूर तफरीही जगहें जैसे चौ मोहल्ला पैलेस आवाम के लिए अगले माह की 3 तारीख से खोला जा रहा है, जबकि शहर हैदराबाद में वाक़ बर्र सग़ीर का मशहूर ज़ूलॉजिकल पार्क को 6 अक्टूबर से खोलने का ऐलान किया गया है। भारत की मौत यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ऐलान किया है कि अभी वजारत ने मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम करते हुए अवाम को गाड़ी के ओरिजिनल कागजात साथ रखने से बरी कर दिया है। लिहाजा 1 अक्टूबर से महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोर्टल के जरिए सारे मामलात निपटाएगा। अब देखना है कि खुद महकमे पुलिस इस नए खाके को कितना समझ पाता है। भारत को सारी दुनिया में जबरदस्त बेइज्जत करने वाला बाबरी मस्जिद को ढा देने के केस में मुलविस 32 कसूरवारों के खिलाफ में चल रहे मुकदमे का फैसला सुप्रीम कोर्ट कल देने वाला है, जिसे शायद अवाम बखूबी पहले ही से जानती है, क्योंकि बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के फैसले से अवाम में अदालत का किरदार साफ हो चुका है। इस मौके पर 32 कसूरवारों में शामिल अभी गुमनामी में जिंदगी बसर करने वाली उमा भारती ने हाथ पैर मारते हुए कहा कि अगर वो जेल जाती हैं तो इसके लिए वो एक एजाज होगा, जबकि एल के अडवाणी और दीगर साबिका बीजेपी लीडर्स का भी ऐसा ही तबसरा सामने आया है। तेलंगाना में कोविड-19 के 2072 नए केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 1,79,283 हो गई है, जबकि 9 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,116 हो चुकी है। महकमे सेहत व खानदानी बहबूद के मुताबिक इतवार और पीर के दरमियान कोविड-19 के 54,302 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में जिन अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं उनकी जुमला तादाद 29,40,642 हो गई है। जिन अजला से नए केसेस आए हैं उनमें आदिलाबाद में 19, भद्रावती कुत्तागुड़म में 85, जेसमसी हदूद में 283, जगतियाल में 43, जनगांव में 28, जयशंकर भोपालापल्ली में 27, जोगलम्बा गजवाल में 21, कामारेड्डी में 44, करीमनगर में 109, खम्मम में 92, कुमारा भीम आसिफाबाद में 24, महबूबनगर में 44, महबूबाबाद में 60, मंशियार में 36, मेदक में 25, मेडचल मलकाजगिरी में 160, मुलुगु में 23, नागरकोलू में 34, नलगुंडा में 139, नारायणपेट में 16, निर्मल में 26, निजामाबाद में 72, पेदापल्ली में 50, सिरसिल्ला में 53, रंगारेड्डी में 161, संगारेड्डी में 32, सिद्दीपेट में 78, सूर्यापेट में 72, विकाराबाद में 17, वनपर्ती में 41, वरंगल रूरल में 33, वरंगल अर्बन में 85 और यदाद्री भोंगीर में आए 41 केसेस शामिल हैं।
गुजरात के वडोदरा शहर में आज जेर तामीर एक 3 मंजिला इमारत मुनज़्ज़म हो जाने के नतीजे में 3 अफराद हलाक और दूसरा मजदूर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ये हादसा पानीगेट इलाके के बवमनपुरे में रात 12:30 बजे के करीब पेश आया। अब तक एक खातून समेत 3 लाशें मलबे से बरामद कर ली गई हैं। आसाम में जबरदस्त सैलाब की वजह से 30 अजला के 57,70,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि अब तक 119 अफराद हलाक हो जाने की इत्तलात मिली है। सरकारी इदारा के मुताबिक सैलाब के मुतासरीन के लिए 627 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए और 1,56,991 अफराद को इन शेल्टर में रखा गया है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को जो कोविड-19 और डेंगू से मुतासिर थे, आज दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें साकेत के दवाखाने में जुमेरात को भर्ती करवाया गया था। आज उनका दोबारा कोविड-19 टेस्ट किया गया, जो मंफी साबित हुआ है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 70,589 कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 61,45,241 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 776 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मुल्क भर में 96,318 अफराद फौत हो गए हैं। हिंदुस्तान में हर 10-11 दिन के वक्फे से मरीजों की तादाद में 10 लाख का इजाफा हो रहा है। 17 जुलाई को मुल्क भर में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद सिर्फ 10 लाख थी। महाराष्ट्र मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां मुतासरीन की तादाद 13,39,232 और मरने वालों की तादाद 35,751 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक का नंबर आता है। दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि कल 28 सितंबर को एक ही दिन में 11,42,811 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनांचे अब तक मुल्क भर में 7,31,10,000 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में आयरन स्क्रैप के गोदाम में धमाके में 5 अफराद हलाक हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजमुल हसन ने बताया कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक वर्कर मार्टर शेल को तोड़ रहा था। धमाके के नतीजे में आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस से पता चला रही कि आखिर ये मार्टर शेल स्क्रैप के गोदाम में कहां से पहुंचा। पुलिस सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिले नौशीरा में वाक़े इस गोदाम में इस बात का भी पता चला रही कि मजीद कोई ऐसी अशिया मौजूद तो नहीं है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी कबायली इलाकों में जहां हालिया अरसे में इंतहा पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन किया गया और यहां के इलाकों में सोवियत यूनियन के नस्ब करदा लाइनमैन और छोड़े हुए मार्टर शेल पाए गए थे। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के खैर के मुतासरीन की तादाद 3,32,00,000 हो गई है, जबकि 10 लाख से ज्यादा अफराद फौत हो चुके हैं। अमेरिका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां मुतासरीन की तादाद 71,47,175 और मरने वालों की तादाद 2,05,000 बताई जाती है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।